तो सभी को नमस्कार। और आज हम देखेंगे कि सीसैट के जो 2023 के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कॉम्प्रीहेंशन के, जिसमें उसी पैटर्न के ऊपर इन क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे ताकि कॉम्प्रीहेंशन में हमारा नंबर चाह कर भी गलत ना हो। तो आइए देखते हैं। इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी while keeping personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised. The ultimate control of data must reside with the individuals who generate it. They should be enabled to use, restrict, or monetize it as they wish. Therefore, data protection laws should enable the right kind of innovation, one that is user-centric and privacy protected. तो क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है? एजम्पशन यानी क्या सोच कर ये लिखा गया। तो पहला, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी is not just a right, but it has a value to the economy. There is a fundamental link between privacy and innovation. तो प्रेरणा जी बताइए क्या assumption है? I कैन यू think a स्क्रॉल second one. पैराग्राफ एक बार दिखाओगे? हाँ बस इतना ही रखो। I think the answer should be both 1 and 2. C. तो करुणा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें मतलब दोनों ही बातें हो रही हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज द वैल्यू टू इकोनॉमी एंड प्राइवेसी एंड इनोवेशन। तो आई थिंक दोनों ही होगा, दोनों हो Okay, सकते okay. So I'll also go with both of your answers. So Prerna, please scroll the screen. So in India, while the unemployment rate is a frequently used measure of poor performance of the economy under conditions of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education, and rising education levels inflate the unemployment evidence. So, which one of the following statements likely reflect as to what the author of passage intends to say? Enrollment in schools and colleges is high, but there is no quality education. Well, this is a highly absurd statement. Unemployment must be seen as a function of rising education and aspirations of young Indians. See, there are no labor-intensive industries to accommodate the huge number of unemployed people, and the education system should be properly designed so as to enable the educated people to be self-employed. So, Prerna and Karuna, please give the answers. Pravesh, according to D option should be the correct one. Justify, Prerna. पहले में लिखा है enrollment in schools and colleges is high but there is no quality education. तो यहाँ पे quality education की बात नहीं हो रही. Second में it is unemployment must be seen as a function of rising education and aspirations of young Indians. ये भी गलत हो जाता है. There are no labor-intensive industries to accommodate the huge number of बी गलत unemployed. बी गलत हो जाता है। अभी आपने बोला बी गलत, कैसे? क्योंकि एजुकेशन और एस्पिरेशंस अगर बढ़ रही हैं तो फिर इससे ये थोड़ा होएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का एज अ फंक्शन ऑफ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट, मीनिंग नहीं, इसका। वो बढ़ेगी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है उस लिंकेज में ही अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखनी पड़ेगी। जैसे एजुकेशन राइज हो रही है, जो यंग इंडियंस की यूथ की जो एस्पिरेशंस है एजुकेटेड यूथ की, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन है मेथोडोलॉजी वो चेंज होनी चाहिए। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which one, Mansi? सेकंड वन। I'll go with D. अब मैं बता देता हूँ। क्योंकि फोर्थ में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने कहीं पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी है, बस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और राइजिंग जो एजुकेशन और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स द यूथ है उसकी बात हो रही है। तो इसलिए आई फाइंड सेकंड टू बी मोर एप्रोप्रिएट। So according to me, will not be incorrect. The reason being, यहाँ पर लिखा है unemployment must be seen as a function of rising education. तो बढ़ता हुआ education unemployment को घटाएगा या बढ़ाएगा?
अकॉर्डिंग टू मी प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो राइजिंग एजुकेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है। वो कुछ फ्लो की बात हो रही है पैसेज के अंदर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, लेकिन राइजिंग एजुकेशन की वजह से नहीं बढ़ रहा है। राइजिंग एजुकेशन के अंदर स्टैंडर्ड लाएं तो वो घट सकता है। डी में बात हुई है कि एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन कर दिया जाए ताकि एजुकेशन पीपल को मिले और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख रहा है, मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट एज टू व्हाट द ऑथर वॉज ऑफ द पैसेज इंटेंड्स टू से। तो वो क्या बोलना चाह रहा है? वो ये नहीं बोलना चाह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बर्बादी शो नहीं कर रहा है वो रमेश, यही एक पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। इसमें बोलिए जो बी वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, एक बार तुम हाँ मतलब पढ़ो कि पहला जो वर्ड लिखा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि राइजिंग एजुकेशन एस्पिरेशन इतना ज्यादा हाई हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट उससे हो रहा है। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट थोड़ा मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल विद सेकेंडरी हायर एजुकेशन, राइजिंग एजुकेशन इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। ठीक है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ था एजुकेशन शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। that is why I'm saying no, so B is somewhat negative. हाँ बी नेगेटिव मैं है, तो लेकिन एडवोकेट बी ये यू कैन, पूछ रहा रिफ्लेक्ट हाँ टू व्हाट एज टू व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड्स हाँ टू से। तो कहीं पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन की बात ही नहीं की है पैसेज में। मतलब पूरे पैसेज में मेरे अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कौन कौन से जैसे फैक्टर्स बी इन्फ्लुएंस होगा करे इसका उनकी आंसर बात। मेरे अकॉर्डिंगली, सेकंड होगा, उसी बेसिस पे मैं बी बोल रही लॉन्ग हूँ। टर्म बी लॉन्ग टर्म क्योंकि जो इस सोल्यूशन हो नीचे लिखा हुआ है ना, सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल जिसके पास सेकेंडरी हायर एजुकेशन डिग्री है और राइजिंग एजुकेशन लेवल है, दे इन्फ्लेट द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, यही डायरेक्टली बोल दिया उसमें। और इसमें बोला नहीं कि अजम्पशन करना, इन्फ्रेंस कुछ नहीं बोला, बोला कि मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट टू व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड्स टू से। क्या बोलना चाह रहा है ऑथर यहाँ पर? लेकिन ऑथर ये मुझे बोलना चाह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह से जब हम कैलकुलेट जो करते हैं इतने सारे फैक्टर्स है, उसमें से एक फैक्टर फंक्शन को लेना चाहिए जो राइजिंग एजुकेशन एस्पिरेशन ऑफ इंडियन यंग इंडियन, ये अकॉर्डिंग टू बी नहीं, मुझे लगता है। आप सभी लोगों की बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन। तो मैं वो इसलिए यहाँ पे प्रवेश आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है क्योंकि एजुकेशन इंक्रीज हो रही है। सेंटेंस ये नहीं बोल रहा है। फंक्शन का मतलब कि ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, वो इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं कर रहा है सेंटेंस। पैसेज में जैसे एक लाइन में बात हो रही है इनएक्यूरेट पिक्चर की, तो उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हो बी को। भाई हमारे दर्शक देखे कि किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी बहुत ही डिप्लोमेटिक होना पड़ जाता है कई बार, लेकिन आंसर तब भी नहीं निकलता है। तो हमें यही देखना है कि आंसर की क्या है इसके बारे में। चलिए तीसरा पैसेज देखते हैं। साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंसेस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल। It is not possible to run a course all right when the goal itself has not been rightly placed. What science needs is philosophy, the analysis of scientific methods, and the coordination of scientific purposes and results. Without this, any science must be superficial. Government suffers precisely like science for lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship which statesmanship bears to politics. Movement guided by total knowledge and perspective, as against aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism when divorced from the actual needs of men and life, so the pursuit of politics become a destructive bedlam when divorced from science and philosophy. तो पूरे पैसेज के अंदर बात हुई है कि साइंस और फिलोसफी का जो रिलेशन है वो एक हार्मोनी के अंदर होना चाहिए, और गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं उससे भी ड्राइव होता है और उसी की तरफ पड़ता है। So which one of the following statements best reflects the most rational, logical, and practical? Modern statements need to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibilities, and goals. It is not desirable to have governments managed by empirical statements unless well mixed with others who are grounded in learning and reflection. As the statements bureaucrats are the product of a society, it is desirable to have a system of education in a society that focuses on training its citizens in scientific methods and philosophical thinking from very early age. It is desirable that all scientists need to be philosophers as well to make their work goal-oriented and thus purposeful and useful to society. तो प्रेरणा बताइए
A option should be correct according to me, because B में बोल रहा है it is not desirable to have governments managed by empirical statesmen unless well mixed with others. तो नहीं लग रहा मुझे, बाकी नहीं आई लग ऑल्सो रहा। गो विद ऑप्शन ए। क्या कह रहे हो मानसी? मैं कह रही हूँ आई ऑल्सो गो विद ऑप्शन ए, मेरे को ओके, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। कोशिश। ऊपर एक बार करना, इसमें लिखा है ना गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइजली लाइक साइंस फॉर द लैक ऑफ फिलोसफी। तो ये बीच में जो वर्ड है ना गवर्नमेंट सफर्स, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि जो रन गवर्नमेंट को रन किया जा रहा है तो वो इट शुड बी गाइडेड बाय द टोटल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव एज अगेंस्ट एमलेस इंडिविजुअल थिंकिंग। तो दोनों चाहिए। नीचे करो एक बार। तो भाई आई सी एम गो माने विद सी। हाँ सी, सी। मैंने तो सी माना। एक बार करुणा, समझा। करुणा बताए पहले। आई थिंक सी और ए दोनों मतलब सेम ही बात बोल रहा है, बट ए में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल और गोल्स की भी बात हो रही है, तो मैं मैं उसको क्योंकि मतलब ए में हाँ ए स्टेट्समैनशिप भी हो की सकता बात, है प्रवेश, पॉलिटिक्स ए भी की हो सकता बात है, कर रहा ए भी है हो सकता है। हाँ ए एंड में सही वो है। साइंस को और पॉलिटिक्स को कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि बोल रहे हैं कि नीड टू वेल ट्रेन्ड इन साइंटिफिक मेथड्स एंड फिलोसफिकल थिंकिंग टू इनेबल देम। मॉडर्न स्टेट्समैन का बात कर रहा है, लेकिन सी में जो है ना वो ब्यूरोक्रेट का बात कर रहा है और अर्ली एज का बात कर रहा है। अर्ली एज तो यहाँ बताया नहीं है घर पे। चलिए, हो सकता है, देखते हैं आंसर क्या ए रहेगा। हो सकता, वो तो अगले साल चलो। So last question of the today. The last end of the state is not to dominate men, nor to restrain them by fear. Rather, it is so to free each man from fear, that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. Well, true self. The end of the state, I repeat, is not to make rational beings into brute beasts and machines. It is to enable their bodies and their minds to function safely. It is to lead men to live by and to exercise free reason, that they may not waste their strength in hatred, anger, and will, nor act unfairly towards one another. तो बहुत अच्छा पैसेज है। हाँ इसका तो आंसर बेस्ड प्रेरणा ऑन, और करुणा ही बोलेगी सिर्फ। मेरे अकॉर्डिंग लिबर्टी होगा, क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि फ्री इंडिविजुअल्स फ्रॉम फियर एंड इनेबल देम टू लिव एंड एक्ट विद फुल सिक्योरिटी। आई थिंक लिबर्टी है। प्रेरणा अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी। ठीक है, प्रवेश बोल दे। बताओ फिर मैं बताऊंगा। मैं डी बोलूंगा, इसमें लिबर्टी बोलूंगा, क्योंकि हेल्थ ऑफ बॉडी माइंड को मतलब नहीं बनता है। पर्सनल सेफ्टी बहुत नैरो हो जाता है। कम्युनल हार्मिंग सिर्फ कम्युनल हार्मिंग का नहीं लिखा हुआ है, विच आर द बेस्ट एक्सप्रेसेस द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट पर्सनल सेफ्टी हो नहीं सकता। कम्युनल हार्मिंग सिर्फ कॉमनल का बात कर रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल की बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए इसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइंड टू फंक्शन सेफली, एक्सरसाइज फ्री रीजन, लिबर्टी ऑफ ओपिनियन, लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी की बात होता है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हो, हर चीज का तो लिबर्टी है आंसर मेरे अकॉर्डिंग। आई ऑल्सो गो विद लिबर्टी। इसलिए भी करेक्ट है क्योंकि कहीं पर भी कॉमनल हार्मिंग एलिमेंट नहीं आई। हर जगह हम्म क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट थी। आपने हम्म एक इंसान को फ्री रीजन होना चाहिए, अपने हिसाब से जी ले, किसी से दुश्मनी ना करे और रैशनल रहे। तो ये सारे ही प्रिंसिपल और फीचर लिबर्टी के हैं, तो इसीलिए आई आंसर ऑफ द डी। तो ओके थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए इसी तरीके से हमारे इंटरेस्टिंग सीरीज के क्वेश्चन जो हम डेली करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एवरीवन।